Okay, good morning. So we are about to start CA final new syllabus SFM extra classes. First you take a note कि extra में आया क्या क्या है. Let's take it. We are comparing your old syllabus with new syllabus, okay? So extras that have come as per your new ICAI MAT, as per new ICAI MAT, the first extra thing is risk management. Number 2, the second extra chapter is securitization. The third extra is interest rate risk management. The fourth extra is International Finance Center and Islamic Finance. Fifth extra is Startup Finance. And sixth extra is Small and Medium Enterprise. Small and Medium Enterprise. Okay, so this is the list of extra chapters that has come in your new ICAI MAT. And what you have to also know is what was there in old syllabus but now it is not there in new syllabus. Okay, removed from syllabus as compared to old. Is number 1 capital budgeting. But you have to remember friends, capital budgeting का basics हमेशा आपके साथ रहना चाहिए. The calculation of all the methods should always be in your fingertips. इसमें एक और बता रहे हैं कि but there is something called as international capital budgeting which is a part that we do in relation with forex. That is there. Okay, but international capital budgeting is there. International capital budgeting is there. Okay, so international capital budgeting in your new MAT exists as a separate chapter. In this new MAT exists as a separate chapter, but you have to remember that it is generally part of forex. So in our class we do as a part of forex, and I hope usually in almost all class wherever you take, it is a part of forex. Okay, the second chapter which has been completely removed is leasing. Leasing has been completely removed. And the third chapter is dividend policy. Now in dividend policy, if you remember, you learn different models. Out of that, one model is very popular and is there in your syllabus through different chapter. That is, I'll say the name as Gordon's model. Gordon's model is also called as dividend growth model or dividend growth model. This is included. Dividend growth model is included. Okay.
through equity analysis or security analysis, through equity analysis or security analysis chapter. So actually the fact is you don't need to study dividend policies separately now, through equity analysis chapter. Most important is, we have tendency to skip theories. And if you remember, in our old syllabus also 16 marks theory के लिए dedicated रहता था, 16 mark पूरा theory question. Similarly न्यू syllabus में भी ऐसा ट्रेंड कंटिन्यू होने का प्रोग्राम है. तो वो थ्योरी जनरली हम लोग स्किप करते चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं. तो थ्योरी सारे हर चैप्टर में जितना जितना है वो सारे पढ़ने हैं. प्लस आपके पहले पुराने सिलेबस में भी इंट्रोडक्शन चैप्टर होते थे, इंट्रोडक्शन चैप्टर जो इंस्टीट्यूट मैट में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें सिर्फ थ्योरी भरे हुए होते थे, वो इस मैट में भी है. इंट्रोडक्शन चैप्टर ओनली फॉर थ्योरी. वो थ्योरी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वो सेल्फ रीडिंग में रहता है यूजुअली. मैं अगर टाइम मिला तो मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा, बट वो सेल्फ रीडिंग के लिए बेसिक थ्योरी रहता ही है कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज, and how ecosystem of finance works, what is growth rate, how an organization can sustain with strategic financial management. All those basic theory was previously there also and it is again here also. ठीक है, तो उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि थ्योरी का टेंडेंसी रहता है कि आप लास्ट मोमेंट पे डेफर कर देते हैं, बट आपको अपना सेल्फ स्टडी टाइम में एक दिन डिवोट करके थ्योरी कंप्लीट कर देना है. ओके, So today we are going to pick up one very interesting chapter, which is actually which used to be a small concept in our old syllabus, which used to be a small discussion in our intermediate also, but now it has been given the look of a chapter. It is securitization. Securitization आज हम लोग शुरू करेंगे. फिलहाल के लिए अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा का पूरा आपको लिखवा दूंगा. ये 6 चैप्टर का जितना भी कंटेंट है मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट जब हमने पढ़ा तो ये देखा कि वो कॉपी पेस्ट मारा हुआ पूरा, इन्वेस्टोपीडिया का या विकीपीडिया का पूरा कॉपी पेस्ट, लैंग्वेज भी वैसे वैसा उठाया हुआ है. तो वो क्या है कि कॉपी पेस्ट में ये एरर होता है कि आप जब कॉपी कर रहे हैं तो होता है ना, कई बार उसको फिर मॉडिफाई भी करने का कोशिश किया हल्का फुल्का, तो कोई सेंटेंस ही डिलीट कर दिए. तो आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं वहां पर, एक सेंटेंस पढ़ते पढ़ते लग रहा है दूसरा सेंटेंस उसमें मर्ज हो गया, मतलब सेंटेंस का रेलेवेंस ही नहीं निकल रहा है. ऐसा इंस्टीट्यूट मैट से फील आ रहा है. तो हमने उसका बेस लेकर उन्होंने जो हेडिंग्स को पॉइंट आउट किया, अपना एक नोट्स बना लिया. मैं आपको पूरा नोट्स लिखवा के पढ़ा दूंगा, जिससे कि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगा. चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको मिलेगा. ओके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि मैं 1 to 6 आपको पूरा लिखवा दूं, या किसी तरह से आपको एक अलग सेपरेट नोट्स दे दूं, और फिर हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से गो थ्रू करके देख लेंगे कि सब हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन योर फाइनेंशियल सिस्टम. इट इज सेक्यूरिटाइजेशन. सेक्यूरिटाइजेशन. क्रिसिल का नाम सुने आप? क्रिसिल क्या है? क्रिसिल, व्हाट इज क्रिसिल? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. वेरी नाइस. क्रिसिल ने एक सर्वे किया था 2016 में और बताया कि इंडिया में ये सिक्योरिटाइजेशन जो अभी हमने पढ़ने जा रहे हैं, उसका बिजनेस का वॉल्यूम 70,000 करोड़ क्रॉस कर गया है 2016. 2017 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं. तो इट हैज टू बी, आई बिलीव, एटलीस्ट 1.5 times. And I don't know how it will fly or how it will trend up in coming years. It is now in, finance world talk of every tongue. हर जबान पर ये बात चल रही है, सिक्योरिटाइजेशन. हर बैंक अपना एक अलग प्रोडक्ट निकाल ही रहा है. हर NBFC अपना एक प्रोडक्ट निकाल रहा है. इवन जैसे आप ये सब सुनते हैं ना, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये टाटा हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर फाइनेंस कंपनीज ऑफ बिग हाउसेस, ये लोग भी सिक्योरिटाइजेशन नाम का एक प्रोडक्ट निकाल रही. बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन पहले एक जमाने में बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता था, अब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स लोग के लिए भी अवेलेबल हो चुका है.
जैसे आप और हम भी सिक्योरिटाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है फाइनेंस वर्ल्ड के सामने, बट हम लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. तो anyways, CRISIL reported 70,000 crores, so definitely there is something that we have to study it as a chapter. Okay, you know, Calcutta में there are very few practitioners who deal with securitization. Okay, so if you know this from a core, it might be कि आपको फाइनेंस अगर अट्रैक्ट करता है तो आप ये तो समझते हैं कि आप फाइनेंस को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, और प्रोफेशन में भी करेंगे क्या, देयर हैज टू बी सम रोल. इतना बड़ा फाइनेंस वर्ल्ड है तो उसमें आप क्या करेंगे, तो सिक्योरिटाइजेशन कैन बी योर एक्सपर्टाइज एंड यू गेट लॉट ऑफ मनी. मतलब आपको जो मांगना आप मांग लो, ऐसा है. जस्ट आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. इवन सेबी ने भी बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हैं, आरबीआई ने भी बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हैं. एक नया एक्ट इंडिया में इसी के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था. इस एक्ट का नाम है सारफेसी एक्ट. सारफेसी एक्ट. Okay, we will elaborate on everything. Okay, let us talk about what is securitization. एक एक पॉइंट लिखते लिखते समझते रहेंगे. Let's write. Number 1, what it is. What it is. देखिए, एक सिनेरियो में आइए that there is a company which is having huge bundle of receivables, and those receivables would be realized over a period of time that cannot be realized instantly. Now pay attention. जैसे वोडाफोन है, ठीक, उनका हर महीने का कुछ 1000 करोड़ का बिलिंग होता होगा, पोस्टपेड कनेक्शन सोचो, बट उसका रियलाइजेशन विद इन अ मंथ हो जाता है. ये इसके लिए नहीं है. हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका रिसीवेबल रियलाइज ओवर द पीरियड होता है. जैसे बेस्ट टू अंडरस्टैंड इज से सिटी बैंक है, उसका क्रेडिट कार्ड्स बहुत लोग यूज करते हैं. वो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरली एक महीने में आ जाता है, बट क्रेडिट कार्ड में बहुत सारा ईएमआईज कन्वर्ट हो जाता है, ईएमआईज एलिजिबल हो जाता है. जैसे कि और एग्जांपल लीजिए, आप कोई बैंक है जिसने हाउसिंग लोन दिया हुआ है, जिसका ईएमआई ओवर द इयर्स रिकवर होगा, जिसका रिकवरी ओवर द इयर्स होगा. तो ऐसे कुछ कंपनी को आप समझिए जिनका बुक्स में इतना बड़ा रिसीवेबल खड़ा हुआ है, जिसका रियलाइजेशन धीरे धीरे ही होने का है. अब उनको लिक्विडिटी क्रंच तो होगा, करेक्ट. उस लिक्विडिटी क्रंच को ओवरकम कैसे करें? एक उपाय है, उसको आप प्लेज करके लोन ले सकते हो. इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स. इंटरमीडिएट में आप एक चैप्टर पढ़ते थे, फैक्टरिंग, याद आ रहा है कुछ? फैक्टरिंग वाज लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स. बट इफ यू डू दैट, व्हाट विल हैपन? इन योर बैलेंस शीट डेट विल इंक्रीज, योर फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज, correct? So your investors may not be that happy to have that mode of finance, correct? So is there any other way out to get some money out of those receivables? The answer is securitization. Securitization से हम उन receivables के बदले कैश उठा सकते हैं without increasing our financial risk, without showing any debt. Interesting. आइए लिखते हैं what it is. A way to sell out the receivables to generate cash. A way to sell out the receivables to generate cash.
फिर लिखिए कंपनीज हैविंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रिसीवेबल्स may face liquidity crunch. Companies having huge volume of receivables may face liquidity crunch. They have the following options. They have the following options. मैंने दो पार्ट निकाला. पहला पार्ट बोरो अगेंस्ट रिसीवेबल्स, borrow against receivables. This increases financial risk. And number two, sell receivables. What we are going to do is sell receivables. आप रिसीवेबल्स को बेच सकते हो एंड दैट इज ओनली सिक्योरिटाइजेशन. सो यू गॉट द आइडिया ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट इट इज. हियर वी आर गोइंग टू सेल द रिसीवेबल्स ऑफ अ कंपनी. रिसीवेबल को बेच दो, पैसे उठा लो. इमेजिन करो, सिनेरियो सोचो, थोड़ा 360 डिग्री व्यू लगाओ, ऑडिटर की तरह सोचो. मैं एक कंपनी हूं, मैंने पब्लिक को लोन बांटा हुआ है, लोन धीरे 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 आएगा और वो लोन का रिसीवेबल्स बुक्स में समझिए कुछ 200 करोड़ रुपया खड़ा हुआ है. ओके, तो 200 करोड़ रुपया रिसीवेबल्स मैं बेच दिया. बेचा तो कुछ कमा भी सकता हूं, प्रीमियम पे बेच सकता हूं, यू नो. आप ये मत सोचिए मैं डिस्काउंटिंग कराने जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग फॉर बिल डिस्काउंटिंग. डोंट कंफ्यूज इट विथ बिल डिस्काउंटिंग. बिल डिस्काउंटिंग इज लाइक फाइनेंसिंग. वहां पे आप डिस्काउंट चार्जेस जो देते हो वो एक तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट है. अगर वो रीपेमेंट नहीं हुआ तो फॉल बैक करेगा, आपको रीपे पूरा करना पड़ेगा. आप उस बिल को बेच दे रहे हो, उस एक्चुअली रिसीवेबल्स पर आपको कुछ कमाई तो होने वाली है, करेक्ट. प्लस आप उसके फ्यूचर कमाई को थोड़ा सा कम अपना समझ के, अभी जो आज आपका प्रेजेंट वैल्यू है उस रिसीवेबल का, उसको थोड़ा सा प्रीमियम पे बेच सकते हो आप. मतलब आपके रिसीवेबल्स जितने आज प्रेजेंट वैल्यू पे खड़े हैं से वो 500 करोड़ के हैं, हो सकता है आप उसको 550 करोड़ में बेच डाले. ऐसा हो सकता है. मतलब पैसे भी जल्दी आ गए एज वेल एज प्रीमियम भी आ गया. इंटरेस्टिंग. फिर वो 550 करोड़ को कोई ना कोई खरीदेगा, तो ऑब्वियसली उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप जो 550 में खरीद रहे हो, आपको जब रीपेमेंट होके आएगा तो 550 से ज्यादा मिलेगा. समझ में आ रहा है फ्लो. मेरे बुक्स में रिसीवेबल है 500 करोड़ का, मैंने आपको 550 करोड़ में बेच दिया, तो मैं तो 50 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लिया, पैसे भी आ गए, करेक्ट. आप जो खरीदे, आप तो तभी खरीदोगे जब आपको 550 से ज्यादा उसका रिटर्न मिले. तो हमें ऐसा एक सजाना पड़ेगा, इस तरह का एक मॉडलिंग करना पड़ेगा, कैश फ्लो को लेके, प्रोजेक्शन लेके, या उसके एविडेंसेस को दिखाने पड़ेंगे कि आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको 600 करोड़ मिलेगा. समझ में आया. तो आपको भी फायदा होना चाहिए, हमें भी फायदा होना चाहिए. और इनडायरेक्टली मैं तो ऐसा सोचता हूं, अगर मैं समझिए मेरा ही बिल्स ड्यू है, मुझे 500 करोड़ का 500 करोड़ भी मिले तो भी फायदा है. अरे इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ा. अरे 500 करोड़ का 490 करोड़ मिले तो भी तो फायदा है.
मैं तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का कॉस्ट अवॉइड कर पाऊंगा। तो आपको तो प्रीमियम मिलना ही मिलना है, अगर आपने खरीदा है तो। मुझे ना भी मिले तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे तो लिक्विडिटी मिल जाएगा ना। बट डील ऐसे भी अरेंज हो जाता है कि मैं भी कमाया आप भी कमाए, ऐसे भी अरेंज हो जाता है, विन विन केस भी हो जाता है। और अगर मैं नहीं कमाया तो भी कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे पास तो कैश आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, और क्या चाहिए मुझे। करेक्ट। सो अभी मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूं, सिक्योरिटाइजेशन का पूरा फ्लो कैसे होता है। हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें पूरा सिक्योरिटाइजेशन आ जाएगा। ये डायग्राम बनाने के लिए अगर आप कॉपी घुमा ले तो बहुत बेहतर होगा, अच्छे से बना पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। नंबर 2, फ्लो ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये डायग्राम पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा कैसे ये मॉडल एग्जीक्यूट होता है। फ्लो ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, बीच से स्टार्ट करना, मिडल से। सबसे पहले होते हैं ऑब्लिगर्स। ऑब्लिगर्स मिडल में एकदम लेफ्ट साइड में चले जाना। नाउ हु आर ऑब्लिगर्स? दे आर द कस्टमर्स whose payment is due. Customers whose payment is due. जैसे मैं एक HDFC बैंक हूं, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दिया हुआ है, तो वो कस्टमर की बात हो रही है जो इनसे बैंक को EMI रिकवरी होगा। दे आर कॉल्ड एज obligors. Obligors have relationship with originators. Originator is the company having receivables. Company having receivables. Originators is the company having receivables. जिनको एक्चुअली सिक्योरिटाइजेशन कराना है, जिनको पैसे चाहिए, जिनको लिक्विडिटी चाहिए। ठीक। ओरिजिनेटर कॉन्टैक्ट्स SPV, फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल। फुल फॉर्म लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपके पास लैंडस्केप में बहुत जगह है। स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV। ठीक। SPV कैन बी अ company, or it can be a firm, it can be a trust, it can be a society. SPV is basically the agent who converts receivables into securities and issues it to the investors. Issues it to the investors. छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा लिखो, अभी नीचे में भी बहुत थोड़ा और लिखना है, ऊपर में भी लिखना है। SPV is the agent who converts receivable into securities and issues it to the investors. Then after SPV, it is the investor. Who subscribes the securities. बोलिए, फ्लो समझ में आ रहा है? चेन समझ में आ रहा है क्या? अभी ऊपर में भी कुछ लिखेंगे, नीचे में भी कुछ लिखेंगे, बट ऐसा ये बेसिक चेन है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, कि इनके बिना आपका सिक्योरिटाइजेशन इनिशिएट ही नहीं हो सकता। कस्टमर होने जरूरी है जिनका
घर लिया हुआ है या जो ईएमआई पे सामान लिए हुए हैं हमसे, ठीक, जो घर लिए हुए हैं, गाड़ी लिए हुए हैं, या कोई आजकल कंज्यूमर गुड्स उठा लेते हैं ईएमआई पे, करेक्ट, जिनका रिकरिंग पेमेंट देने का बात है। देन ओरिजिनेटर है, जैसे कि बैंक है, जिसने उनको फाइनेंस किया हुआ है। ओके, देन आफ्टर दिस ये ओरिजिनेटर अपना रिसीवेबल्स का एक वैल्यूएशन कर रहा है कि मुझे इतना रुपया प्रेजेंट वैल्यू में मिलना चाहिए, है तो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज ईएमआईज, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है कि उसे इतना मिल जाए तो वो खुश है, प्रीमियम मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, नहीं भी मिले तो से प्रिंसिपल जितना उतना ही मिल जाए, लिक्विडिटी क्रंच तो हटे, करेक्ट। फिर वो सारा का सारा रिसीवेबल्स हैंडओवर डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं कर रहा है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है। ये स्पेशल नाम इसलिए रखा गया कि इसका एक ही काम है, स्पेसिफिक काम है, मीडियम है ये ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर के बीच में, जो आपके रिसीवेबल्स को समझ के उसका वैल्यूएशन करेगा और वैल्यूएशन करके उसके पीछे एक सिक्योरिटी इशू करेगा। उन सिक्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। एसेट बैक्ड, पीछे में कोई एसेट है ना, रिसीवेबल्स, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। सर एसेट बैक्ड सिक्योरिटी क्या होता है? कुछ नहीं, एक अग्रीमेंट बनता है, लॉफुली एक अग्रीमेंट बनता है, उस अग्रीमेंट में कंपनी का रिसीवेबल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और एक कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए, ओरिजिनेटर को जिम्मेदार ठहराते हुए सिक्योरिटीज इशू करवाई जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि ये सीरियल नंबर से ये सीरियल नंबर के कुछ सिक्योरिटीज इशू किए जा रहे हैं, जिसका ये फेस वैल्यू होगा, जिसका ये इशू प्राइस होगा। ओके, और अगर कोई इसमें रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो ये वाला एसेट जिसके पास सिक्योरिटी है उसी को ट्रांसफर होगा, या फिर इस सिक्योरिटी की सर्विसिंग कैसे होगी, उसके पूरे अग्रीमेंट ड्राफ्ट होते हैं। वो स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है, ठीक, एक लॉफुल अग्रीमेंट बना दिया तो वो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, आप ऐसा समझिए, और बाकी जो पेपर वर्क है वो सब तो वो करना ही पड़ेगा। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया गया है, उसके बाद जैसे ही ये पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कि जो रिसीवेबल्स यहाँ पे आए थे उसका सिक्योरिटीज बनाया गया, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को इशू किया गया, जब तक उन सारे इन्वेस्टर को उनका रिटर्न नहीं मिल जाता तब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिंदा रहेगा, उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल को वाइंड अप कर देंगे। और कभी कभी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक सेपरेट एंटिटी हो सकती है, जैसे आपने एक कंसल्टेंसी फर्म खोलते खोलते स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला काम शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हो, मेरी कंपनी का भी या मेरे बैंक का भी रिसीवेबल्स को सिक्योरिटाइज करते हो, कोई मिस्टर एक्स के बैंक का भी लेते हो, कोई उसके बैंक का भी लेते हो, कोई उसके बैंक का भी लेते हो, आपका ये प्रोफेशनल बिजनेस हो गया। दो तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, एक हमने बनाया सिर्फ एक काम के लिए, हमारे ही पर्पस के लिए, हम अपना इसे सिक्योरिटी इशू कराए, इन्वेस्टर को हैंडओवर किए, और तब तक हम उसे बंद नहीं कर सकते जब तक उन इन्वेस्टर का सर्विसिंग पूरा नहीं हो जाता, करेक्ट। और दूसरा है कि हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया और उसमें ऐसा काम शुरू कर दिया प्रोफेशनली कि एक बैंक क्यों, अब कोई दुनिया भर का बैंक हो तो सबका ले लेके हम लोग एक्सपर्टाइज हो चुके हैं, तो सबका हम लोग इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। वो फिर एक परपेचुअल एंटिटी बन जाता है उस समय स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। एक्चुअली जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट जन्म लिया था तो उस समय स्पेशल पर्पस व्हीकल को टेम्पररी एंटिटी की तरह ही बनाए थे, इसीलिए नाम स्पेशल वर्ड रह गया कि ये व्हीकल है, बस कुछ दिन के लिए है, बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। पहली बार ऐसा था, बट आजकल का जमाना अलग हो गया। अब इस पे एक्सपर्टाइज जो लोग हासिल कर ले वो बोलते हैं हम बंद क्यों करें, जब हम आपका कर सकते हैं हम किसी और का भी करेंगे, फिर हम किसी और का भी करेंगे, उसको एक सेपरेट डिवीजन बना दिया गोइंग कंसर्न में, ठीक। अब इन्वेस्टर हु सब्सक्राइब्स द सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्वेटिव तो रहेगा कि भैया मेरे पैसे हैं, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, आज मैं इक्विटी शेयर लेता हूं तो मुझे पूरा एसेट पे कंट्रोल मिलता है, करेक्ट। अब आपका ये जो मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं बदले में मुझे खाली रिसीवेबल मिल रहा है, बट वो रिसीवेबल आएगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, ठीक। तो उसके लिए लॉफुल अग्रीमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा।
रिसीवेबल आएगा कि नहीं उसके लिए लॉफुल अग्रीमेंट हो रहे हैं, वैलिडेशन करना पड़ता है। जैसे यहां पे जो रिसीवेबल्स है ना, ये रिसीवेबल्स का ड्यू डिलीजेंस होता है। ड्यू डिलीजेंस मतलब, ड्यू डिलीजेंस वर्ड मतलब, हाँ, क्रेडिबिलिटी, सच है कि नहीं। उसके जो उसमें जो कस्टमर्स हैं उनका एक्चुअली केवाईसी चेक किया जाएगा, फिर उनका पेमेंट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो डिफॉल्टर्स हैं कि वो वाइट क्रेडिटर्स हैं, ऐसा इस कंपनी के वाइट डेटर्स हैं, वो देखा जाएगा। और वो लोग का पैटर्न ये भी देखा जाएगा कि ये लोग ऐसे तो नहीं है ना कि अभी अभी बस लोन लिए हुए। इसमें बहुत सारा सेफ्टी कंसर्न रहता है। इन्वेस्टर को सेफ करने के लिए कंडीशन डाला गया है कि आज जैसे मैं एक बैंक हूं, मैंने आज ही लोन दिया, अगला महीना से सामने वाले कस्टमर का ईएमआई चालू होगा तो मैं आज ही सिक्योरिटाइज नहीं करा सकता। मुझे मिनिमम पेमेंट पैटर्न उसके ऑब्जर्व करने हैं, ओके, विच में रेंज फ्रॉम 3 months to 12 months। जैसे मैं आपको वो नोट्स में दूंगा, होम लोन होता है ना जिसका मैच्योरिटी मान लो 2 साल से ज्यादा या 5 साल से ज्यादा, आप ऐसा समझो, उसमें 12 महीना के पहले सिक्योरिटाइज नहीं करा सकते। क्योंकि अगर मैं अभी लोन दिया और अभी का भी सिक्योरिटाइज करा लिया तो हो सकता है ना इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ जाएगा, वो सामने वाला दे ही नहीं रहा पैसे। 12 महीना तक पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर वो कस्टमर्स डिफॉल्टर्स हैं तो वो रिस्क ज्यादा, उसकी सिक्योरिटीज की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, आपको ये जो मैं बता रहा हूं इसका बहुत गहरा कनेक्शन है जो लेहमैन ब्रदर्स का फॉल हुआ था उससे। लेहमैन ब्रदर्स का फॉल होने का कारण था कि लेहमैन ब्रदर हैड इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन दिस सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टर, ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए थे, और वो सिक्योरिटीज जो थे वो सारे रिस्की हो गए थे इन द सेंस कि वहां पर जो ये ऑब्लिगर्स थे ये सारे डिफॉल्टर्स हो गए थे। तो जिसका बुक्स में एक्चुअली वो रिसीवेबल होना चाहिए था उसने लेहमैन ब्रदर्स को बेच दिया। समझ में आ रहा है सिचुएशन? और लेहमैन ब्रदर्स वो सिक्योरिटी लेके होल्ड किया हुआ था, उसके पास पैसे आए नहीं। और वो लेहमैन ब्रदर्स भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक था तो उसके पास किसी और के पैसे थे, वो पैसे देने पड़े, पैसे दे नहीं पा रहे तो वाइंड अप के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल अप कर दिया। क्या करता? तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करना, वरना ये मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। लेहमैन ब्रदर्स का फॉल होने का कारण यही था। लेहमैन ब्रदर्स में एक होता है, जैसे पहली दफे जब होम लोन के पीछे सिक्योरिटी इशू होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, क्योंकि होम लोन के पीछे एक मॉर्गेज क्रिएट किया हुआ है। तो इन्वेस्टर को क्या दिखाते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, सामने वाले का पूरा घर हमारे पास, उसको बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। देन अगर आप होम लोन पेमेंट नहीं करते हो एज अ कस्टमर, जैसे आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया है, सबने क्रेडिट कार्ड यूज किया है? क्रेडिट कार्ड में आप देखना, जो कभी किसी को देखना, अगर आपने खुद ने यूज नहीं किया तो जो यूज करते हैं उनका कभी स्टेटमेंट को पढ़ना। उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है कि आपका इस महीने का अमाउंट ड्यू इतना है, ओके, से 50,000 रुपए अमाउंट ड्यू है, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भी लिखा हुआ आता है। टू कीप योर क्रेडिट कार्ड एक्टिव you have to pay minimum amount, say that will be usually 20% of the amount due। 50,000 है तो 20% 10,000 हो सकता है, या कभी 5% होता है। जनरली मेरे क्रेडिट कार्ड में तो 5% है, तो 50,000 है ना ड्यू, तो 5% 2,500 रुपए मुझे मिनिमम देना ही है टू कीप माई क्रेडिट कार्ड एक्टिव, ऑल एल्स दे विल ब्लॉक माई कार्ड। Okay, now if I'm paying 2,500 only, that means I have not paid the remainder, so remainder would be financed to me at 3% interest per annum. But if I pay entire 50,000, I will not pay any interest. If I pay entire 50,000, I'll not pay any interest. If I have to pay, at least I have to pay 2,500. ऐसे ही होम लोन में भी होता था।
यूएस में होम लोन में भी ऐसा ही कुछ केस था कि अगर आप कस्टमर हो, आपने होम लोन पेमेंट नहीं किया, तो आपका लोन को एक्टिव रखने के लिए हमने बोला आप मिनिमम अमाउंट तो दो, तो आपने मिनिमम अमाउंट दे दिया। जब आप मिनिमम अमाउंट दे देते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रेटिंग है वो थोड़ा सा लोअर हो गया, क्योंकि आप पूरा अमाउंट नहीं दिए, मिनिमम अमाउंट दिए। एक अमाउंट, एक ऑब्लिगर ऐसा भी हो सकता है जो कुछ भी नहीं दिया, तो उसका तो रेटिंग बहुत ही खराब है। एक ऑब्लिगर ऐसा है जो पूरा दे दिया, उसका रेटिंग एकदम फाइन है। एक ऑब्लिगर है जो मिनिमम अमाउंट को दिया। करेक्ट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऑब्लिगर है जो मिनिमम अमाउंट को दिया। ऐसा सिक्योरिटीज को बोलते हैं सब प्राइम मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। सब प्राइम मतलब, प्राइम मतलब बेस्ट, सब प्राइम सेकंड बेस्ट। उसका रिस्क लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट पे खींच रहा है वो रिकवर करेगा कि नहीं पता नहीं। लेमन ब्रदर्स ने सब प्राइम पे बहुत बड़ा स्टेक ले लिया था, और वो किस लिए लिया वो तो उतना रिसर्च हम नहीं करने गए, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बट उस पे एक्सपोजर बहुत बड़ा ले लिया सब प्राइम पे। इसका ही नाम पड़ा यूएस सब प्राइम क्राइसिस। यूएस मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में एक नाम पड़ा यूएस सब प्राइम क्राइसिस, जिसमें लास्ट में गवर्नमेंट को आके पैसे इन्फ्यूज करके उन लेमन ब्रदर्स के इन्वेस्टर्स को बचाना पड़ा। लेमन ब्रदर्स जो गया सो गया, बट यूएस गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्टिव होना पड़ा, जो एक वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बना कि ऐसा सिक्योरिटाइजेशन आप लोग ना करें। उसके बाद आरबीआई भी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना शुरू हुआ इंडिया में भी, कि सिक्योरिटाइजेशन में कहीं इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो जाए। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज द मेजर कंसर्न इन दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे एक अलग अपॉइंट होते हैं ट्रस्टी। ये ट्रस्टी का काम क्या है? ये सारा ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि ओरिजिनेटर जो एसेट सिक्योरिटाइज करवा रहा है उसका रीपेमेंट टाइम पे आया है कि नहीं आया, उनको एविडेंसेस सारे देखने हैं। ऑडिटर काइंड ऑफ। ये एसपीवी जो अग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा रहा है उसमें कोई लूप होल तो नहीं है। दे कैरी ड्यू डिलीजेंस टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। देन अगेन टू गिव प्रोटेक्शन, ये एसपीवी को कांटेक्ट करना पड़ता है रेटिंग एजेंसीज को। व्हाट आर रेटिंग एजेंसीज? दे आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज who will again conduct due diligence on the securities, whether their repayment will come or not, what type of customers are there, what is their age group, customers का एज ग्रुप, कस्टमर्स का इनकम बेस, फिर उनका पैटर्न ऑफ पेमेंट कैसा रहा है, इसका वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, ये ओवर प्राइज्ड है कि अंडर प्राइज्ड है, ऑल दो स्टफ्स दे विल डू एंड दे विल गिव सम रेटिंग। द रेटिंग एजेंसीज अगेन आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। जैसे इन्वेस्टर अगर सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर रहा है, अगर उस सिक्योरिटी के लिए रेटिंग एजेंसी का कोई रेटिंग है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसका लेवल ऑफ रिस्क कितना है, तो उसको आना है कि नहीं आना है वो अपना सोच समझ के डिसीजन ले सकता है। तो रेटिंग एजेंसी इज, यू कैन राइट इधर क्रेडिट रेटिंग बाय checking the strength of cash flows, timeliness, etc. Timeliness, etc. सर एक चीज बताइए, ये जो सिक्योरिटी है इसका जो रिटर्न है वो रिटर्न वन टाइम आता है कि पीरियोडिक आता है? ये जो सिक्योरिटी है इसका रिटर्न कैसा आता है? जैसे एक इन्वेस्टर के एंगल से हम सोचे तो वो मेरा पोर्टफोलियो में इक्विटी में जा रहा है कि डेट में जा रहा है?
ये डेट सिक्योरिटी हुआ कि ये इक्विटी में आया? आप सोचो, इक्विटी मिला क्या आपको? एसपीवी का इक्विटी मिल गया क्या? एसपीवी के आप इक्विटी होल्डर बने क्या? कोई हालत में ही नहीं बने। तो आप एज एन इन्वेस्टर इसमें डेट सिक्योरिटी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो डेट सिक्योरिटी का मॉडल क्या होता है? कितना तरह से होता है डेट सिक्योरिटी? एक होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब वैनिला। वैनिला मतलब रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट होगा और बुलेट रिडेम्पशन होगा, करेक्ट। दूसरा और भी फिर नॉन कन्वेंशनल में बहुत सारा तरह का बनाया जा सकता है कि इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। ऐसा बहुत सारा तरह से इसको डिजाइन किया जा सकता है फॉर एन इन्वेस्टर, जो आप लोग अपना बॉन्ड वैल्यूएशन में पढ़ते हो, करेक्ट। इन्वेस्टर के लिए ये डेट है, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टर इक्विटी होल्ड नहीं कर रहा है, ओके। तो डेट का सर्विसिंग होना जरूरी है। सर्विसिंग होना मतलब इन्वेस्टर को टाइमली अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलना चाहिए। और वो कहां से आएगा? सोचो, फ्लो से सोचो, कौन देगा इन्वेस्टर को? ऑब्लिगर क्या डायरेक्ट इन्वेस्टर को देगा? रूट वही है, एसपीवी ही पहुंचाएगा। एसपीवी ही पहुंचाएगा, करेक्ट। इन्वेस्टर का सारा सर्विसिंग एसपीवी करेगा। अब एसपीवी को कौन देगा? हाँ, ऑब्लिगर क्यों देगा? ऑब्लिगर सीधा ओरिजिनेटर को ही जानता है। मैंने लोन लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक से, तो मैं ईएमआई तो एचडीएफसी बैंक को ही दूंगा, करेक्ट। मैं थोड़ी स्पेशल पर्पस व्हीकल को दूंगा या थोड़ी जाके इन्वेस्टर को दूंगा। अब ऑब्लिगर दे रहा है नहीं दे रहा है, एचडीएफसी बैंक तो इतना बड़ा बैंक है, ऐसे ही उनके पास एक फॉर्म लेने का समय नहीं है, इतने बिजी रहते हैं हर समय। अगर एसपीवी जाके बोल रहा है भैया पैसे दो, इन्वेस्टर को देना है, सुन नहीं रहा है, तो क्या? तो इसके लिए भी एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या? यू हैव टू कीप वन रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट whose responsibility is to take money from obligors and give it to originator। ये भी एग्जिस्ट करना जरूरी है, जिससे ये लगेगा ना कि ओरिजिनेटर के बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, तो क्या हुआ, उसने एक स्पेशल बंदा इस पर्टिकुलर काम के लिए रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्लिगर टाइम पे दे रहा है तो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर कोई टाइम पे नहीं दे रहा है तो उसको फॉलो अप तो करना पड़ेगा। तो बैंक के आप देखते हैं जनरली एजेंट लोग आ जाते हैं कलेक्शन करने के लिए। वो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट कलेक्शन करते हैं और इन्वेस्टर्स कस्टमर्स को फॉलो अप करते हैं और इंश्योर कराते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए किसी भी तरीके से। इससे इन्वेस्टर को सेफ्टी तो महसूस होगा ही ना कि हाँ भाई हमारे लिए कोई देखने वाला अलग से है, ओके। देन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। पूरा डील समझा रहा हूं, ये सब हम लोग इंटर लेवल में नहीं बताते थे, इतना डील नहीं बताते। अभी तक इंटर का पढ़ाई तो अभी तक खत्म हो गया होता। पूरा डील ऑर्गेनाइज करना बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि शायद आप 1-2 साल बाद क्वालिफाई होके प्रैक्टिस में इसको करने लग जाएं, इसलिए आपको इतना डेप्थ में बता रहा हूं। और इनफैक्ट ये फ्लो जानना बहुत जरूरी भी है, ये सिलेबस का पार्ट भी। ओके, नाउ ओरिजिनेटर कभी कभी देखिए, आपको ये तो मालूम है ना, हर लोन लेने का प्रोसेस में एक सिस्टम होता है मार्जिन मनी का, मालूम है? तो मार्जिन मनी जैसे अगर आप एज अ कस्टमर होम लोन ले रहे हो, घर 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का लोन मिलेगा क्या? हाँ, कम का ही मिलेगा, मार्जिन रहेगा कि नहीं? तो उसी तरह से ये ओरिजिनेटर यहां पे कर क्या रहा है, अपना रिसीवेबल्स पूरा का पूरा सिक्योरिटाइज करा दिया। तो देयर हैज टू बी सम मार्जिन, नहीं तो अगला तो पूरा झाड़ लिया भाई, मेरा तो कोई लायबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिल रहे तो दिमाग ही नहीं लगाएगा। तो देयर हैज टू बी सम मिनिमम होल्डिंग, ओके। उसका मैं आपको आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या मिनिमम होल्डिंग का क्राइटेरियाज है। दूसरा, अगर एसपीवी मानो एक सेपरेट एंटिटी है,
एसपीवी को भी एक भरोसा चाहिए होता है। जैसे आप लोग ये सुने होंगे, आईपीओ में एक रूल होता है, जब एक कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी के प्रोमोटर लोग को मिनिमम 20% होल्डिंग रखना पड़ता है, वरना तो वो तो उतना सारा शेयर बेच के चले गए, भैया कंपनी डूबे चले, अपने को क्या। करेक्ट। तो ये ओरिजिनेटर को भी कुछ सिक्योरिटीज अपने नाम पे उठाने पड़ते हैं एसपीवी को सेफगार्ड करने के लिए, कि एसपीवी तू चिंता ना कर, तू मेरे रिसीवेबल से सिक्योरिटी बना, मैं ही तेरे से कुछ सिक्योरिटी ले लूंगा। आई विल सेल इट टू यू एंड आई विल परचेज इट फ्रॉम यू। तुम्हारा 20% तो मैं ही ले लिया। तो समझे क्या, मैं एज एन ओरिजिनेटर, मेरे बुक्स में सोचो, पहले रिसीवेबल था, ठीक, मैंने 80% एसपीवी को दे दिया, से कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया, रिसीवेबल में कोई प्रीमियम नहीं कमाया, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैंने वही दे दिया। 80% 400 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ का मैं ही मालिक बन गया, उस पे तो मैं इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा, मैं 100 करोड़ पे कमा भी रहा हूं। करेक्ट। लिक्विडिटी कितने की आई, 400 की आई, बट वो 100 आई विल कंसिडर दैट आई हैव परचेज्ड रिसीवेबल्स, I will consider that I have purchased those receivables from other SPVs. You can understand that I have done some investment not in other securities but in my own securities, and that is a part of rule. आपको करना होगा। ऐसा करने से इन्वेस्टर को ज्यादा भरोसा आता है। Originator has to subscribe some securities so that there is promoters holding, so that there is little feeling कि यार ये लोग भागेंगे नहीं, ये लोग भी तो अपने सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखें, दिवालिया होंगे तो इनका खुद का भी तो होगा। करेक्ट। दूसरा, ओरिजिनेटर समटाइम्स ऑल्सो कीप कैश कोलैटरल विच विल बी मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट, कि देखिए कैश कोलैटरल मतलब वो अपना एफडी वेफडी का लिस्ट दे देगा कि देखिए हमारा इतना एफडीज वगैरह है, अगर कुछ भी ऑब्लिगर से डिफॉल्ट हुआ तो हम लोग इन्वेस्टर को दे देंगे। और देयर कैन बी सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दिस, जैसे कि ओरिजिनेटर का कोई और एक बैंकर है जो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई गारंटी लिख के दे देगा, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, कोई श्योरिटी बॉन्ड दे देगा। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, वो लोग आपको एक अग्रीमेंट लिख के दे देंगे, आप ओरिजिनेटर हो, आपका कोई जन से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो आपके बिहाफ में गारंटी लिख के दे देंगे। श्योरिटी बॉन्ड इज लाइक गारंटी कि अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो इन्वेस्टर लोगों के लिए रुपया उनसे लेके दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट एनहांसर्स। ओरिजिनेटर के साथ जुड़ा हुआ होता है क्रेडिट एनहांसर, एंड ये क्रेडिट एनहांसर कौन होता है? It can be originator himself, or any third party. What they do? They provide cash collateral or एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट और श्योरिटी बॉन्ड्स। ये क्रेडिट एनहांसिंग मतलब बेसिकली क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है, इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, जो सिक्योरिटी इशू हो रही है उसका क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना। जितना कोलेटरल रहेगा उतना उसका रिस्क लेवल कम हो जाता है। ये कब करते हैं ये पता है? बीच बीच में भी करते हैं। जैसे जब सिक्योरिटाइज हुआ तो कोई डिफॉल्टर नहीं थे, बीच बीच में डिफॉल्टर आने लगे, तो टाइम टू टाइम सिक्योरिटीज का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब समझते हैं कि ये कहीं सिक्योरिटी सारे डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे। जैसे आज सिक्योरिटी इशू हो गए, समझो एक बैंक है जिसका 15 साल का मॉर्गेज बाकी था, मॉर्गेज का लोन का रिकवरी बाकी था, तो उसने 1 साल अपने नाम पे होल्ड किया, उसके बाद 14 साल का
सिक्योरिटाइज करा दिया। अब 4 साल बाद थोड़े थोड़े डिफॉल्टर्स आने लग गए, तो इन्वेस्टर को नुकसान होने लगेगा। तो इसमें गाइडलाइंस बना हुआ है, जो सरफेसी एक्ट में बोल रहा था, जो आरबीआई गाइडलाइंस है इसके ऊपर, वो ये बोल रहा है पीरियोडिकली आपको स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब कि इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं हो रहे ना, अगर डिफॉल्टर हो रहे हैं तो क्रेडिट एनहांसमेंट करो। क्रेडिट एनहांसमेंट करो मतलब कैश कोलेटरल बढ़ाओ, इसके पीछे सप्लीमेंट्री डीड अटैच करो, या फिर कोई थर्ड पार्टी से एलओसी लाके दो, वरना तो फिर ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा किसी भी समय, एसपीवी इंसॉल्वेंट हो जाएगा या फिर ओरिजिनेटर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। करेक्ट। ये क्रेडिट एनहांसर अगेन किस लिए है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। और ये एनहांसमेंट जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही करना है, ये एनहांसमेंट हो सकता है आप ग्रेजुअली भी कर सकते हो। ये एनहांसमेंट हो सकता है आप ग्रेजुअली भी कर सकते हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ इस पूरा को यहां से यहां तक को सजाने वाला भी एक एंटिटी होता है। अगर इंटरेस्ट आ रहा हो ना कॉन्सेप्ट में, तो बनना ये है आपको, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरर। ये आप जैसा प्रोफेशनल होता है, पूरा फर्स्ट टू लास्ट को सजाने वाला, डील अरेंजर। डील अरेंजर बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है दोस्तों। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ काम किया, क्वालिफाइड लोगों को कुछ अच्छा काम मिल जाता है ना, तो लगता है कुछ काम किया, वरना वो क्या है, बस आईटीआर रिटर्न भरो, ऑडिट रिपोर्ट डालो। बट इसमें जो बुद्धि लगा के पैसे निकलवाते हैं और सारा डील अरेंज करते हैं। हमारे यहाँ पे जो शोएब है, आप मिले होंगे, वो ये काम किया हुआ है एक फर्म के साथ जोड़ के, तो अपना एक्सपीरियंसेस बताते रहते हैं। कलकत्ता में 1-2 फर्म ही हैं जो करते हैं। रेंटो मोजो एक वेबसाइट है, रेंटो मोजो, नाम सुने क्या? अभी सुन लीजिए। वो क्या करता है, कोई भी सामान आपको चाहिए भाड़े पे लाके दे देगा, मतलब लाके दे देगा, नया खरीद के दे देगा और आपसे भाड़ा रिकवर करे। अब उसमें आप टीवी ले लो, गाड़ी ले लो, फ्रिज ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, मोबाइल फोन ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े भाड़े पे कपड़े भी दे रहा है। 5 कपड़े महीने के नए मिलेंगे, 2000 रुपया महीना लगेगा। आप जो चाहिए, आपको घर का एसी चाहिए, पंखा चाहिए, मेरे को साउंड सिस्टम चाहिए, कैमरा चाहिए, जो चाहिए, यू जस्ट पुट अ रिक्वेस्ट, यू गिव योर प्रोफाइल, आपको वो एक डील बना के देंगे। तो रेंटो मोजो का बहुत सारा लीज रेंटल्स रिकवरी होना बाकी रह गया। खरीद खरीद के लाके फंडिंग उठा लिया। एनआरआई उसके कुछ रेंटो मोजो के कोई एनआरआई इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने रुपए डाले और उन्होंने उस रुपए से बहुत सारे रिसीवेबल्स जनरेट किए। ठीक, ये सारे रिसीवेबल्स को लेकर एक कैश फ्लो का मॉडलिंग किया गया कि इसका ऑब्लिगर का रीपेमेंट का पैटर्न कैसा है और ये ऑब्लिगर के रिस्क प्रोफाइल क्या है, सारे मॉडलिंग किए गए, प्रेजेंट वैल्यू निकाले गए और सबको लेके किसी एक बैंक को दिया गया जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना। एक बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना, उसने वो सारे के सारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया और फिर वो बैंक ने खुद होल्ड किया हुआ था कि उसने किसी और को दिया, दैट वी डोंट नो, उतना डेप्थ ऑफ डील अपने को नहीं पता चला। बट उस बैंक का नाम था बार्कलेस बैंक, चेन्नई का, और कुछ 6-8 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर तरह से वो लोग उठा लिए थे मार्केट से। और फिर वो रुपया को क्या करेंगे, वापस रोटेशन
उससे वापस लोगों को सामान बांटेंगे, वापस लीज रेंटल आएगा, फिर लीज रेंटल को वापस कहीं सिक्योरिटाइज करा देंगे, और बीच में खुद भी कुछ होल्ड कर लेते सिक्योरिटीज, तो कमाई वैसे जारी रहती है। और ऐसा डील अरेंज करते हैं कि जैसे कि कैश फ्लो जो आने वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखा देते हैं। तो दिखाने का काम तो आप लोगों को सीए फ्रेटर्निटी में समझ में आ ही जाता है कि क्या दिखाने का मतलब क्या होता है और होने का मतलब क्या होता है। तो ज्यादा दिखाते हैं, तो ज्यादा दिखाते तो उसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, करेक्ट। वो ज्यादा कैसे दिखाते हैं वो तो आपको सब समझ में आता है, क्या पे क्या चेंजेस करना पड़ता है। और ज्यादा दिखाए वैल्यू आ गई, तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही सिक्योरिटाइज हो रहा है उसमें भी प्रीमियम आ रहा है, और जब उसका रिपेमेंट एज एन इन्वेस्टर मेरे पास आएगा तो भी मैं प्रीमियम कमाऊंगा। है तो बहुत अट्रैक्टिव चीज, बट आपको थोड़े गाइडलाइन से चलने हैं जिससे कि डील प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए, कहीं अनएथिकली कोई किसी का नुकसान ना हो जाए। ठीक, ये पूरा फ्लो है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, हु आर द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें जितने मैंने बॉक्स बनाए हैं सबका नाम आएगा। जो पहला रो में मैंने बताया, ये पहला रो जो था या फर्स्ट जो फ्लो बताया, ये प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला 4 प्राइमरी में 1 2 3 4, इनके बिना डील सज ही नहीं सकता। और उसके अलावा जो है वो सारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सपोर्टिव रोल में आते हैं। इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सपोर्टिंग रोल में आते हैं। गॉट इट? आइए आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज नंबर 3। अब मैं थोड़ा और लॉजिकल बनाता हूं चीजों को, इन डेप्थ में लिखाता हूं कि व्हाट आर द एसेट्स एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन। ये आपके इंस्टीट्यूट मैट में नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये सब नहीं जाने तो आपका नॉलेज अधूरा रह गया। तो सर आप कहां से बता रहे हैं? मैं आपको आरबीआई गाइडलाइन से बता रहा हूं। एसेट्स एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन, इसके पीछे पूरा आरबीआई का गाइडलाइन है, आप गूगल करके खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं उसको ब्रीफ करके पढ़ा रहा हूं। नंबर 1, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज जिसमें आता है जैसे एग्जांपल कैश क्रेडिट अकाउंट्स। कैश क्रेडिट अकाउंट समझते हैं क्या आप? सीसी अकाउंट। हाँ। दूसरा क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एज एंड व्हेन यू स्पेंड यू पे एंड अनदर इज ईएमआई कंपोनेंट। तो ईएमआई कंपोनेंट इज इजी टू सिक्योरिटाइज, बट देखो कंसल्टेंट आप तभी बनते हो जब आप डिफिकल्ट चीजों को भी सिक्योरिटाइज करा देते हो। जैसे मैंने आपको बोला वोडाफोन का मंथली बिल्स, वो शायद सिक्योरिटाइज के लिए एलिजिबल ना हो क्योंकि इट इज एज एंड व्हेन द अमाउंट इज इनकर्ड। बट इसके लिए भी क्या हुआ कि एक ट्रेंड पकड़ लिया गया। जैसे मैं वोडाफोन यूजर हूं और मेरे जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं, तो हर महीना मेरा मिनिमम रेंटल इतना आता ही आता है, तो उसको एक बेस पकड़ लिया कि ये नहीं भी यूज करेगा तो मिनिमम रेंटल इतना आएगा ही आएगा, उसको सिक्योरिटाइज करा दिया। क्रेडिट कार्ड है, वैसे तो क्रेडिट कार्ड का रूल क्या है? एज एंड व्हेन आई स्पेंड आई विल पे। ओके, बट आप कंसल्टेंट हो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी के, तो आपने हमारा अकाउंट का मिनिमम रीपेमेंट देखा हमेशा कि इनका मिनिमम स्पेंडिंग इतना रहता ही है, ऑन एन एवरेज एनुअल स्पेंडिंग को देखा और उसका एवरेज आउट कर दिया, इतना रुपया इसका सिक्योरिटाइज करा दो। हालांकि वो कंडीशनल है, वो मैं स्पेंड करूंगा तभी जनरेट होगा बिल, बट आप सिक्योरिटाइज करा दिए। तो सब चीज पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे यहाँ पे कानून बने हैं बट अभी उतने सॉलिड नहीं है, तो बहुत लोग लूप होल का फायदा उठाते हैं। उतने सॉलिड नहीं है, उतना लूप होल्स अभी भरा हुआ नहीं है क्योंकि ये भी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है।
दूसरा, एसेट्स और सिक्योरिटीज परचेज्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज, assets or securities purchased from other entities। मैं एक बैंक हूं, मैंने आपका सिक्योरिटाइजेशन किया हुआ सिक्योरिटी परचेज किया हुआ। आपकी कंपनी ने सिक्योरिटाइज किया होगा, उसका सिक्योरिटी मैंने परचेज किया हुआ है। आपका भी किया हुआ, आपका भी किया हुआ है। जिन सबका रिपेमेंट आने का बात है तो मेरे लिए तो रिसीवेबल ही हो गया, मैं उसको भी सिक्योरिटाइज करा सकता हूं, मतलब काइंड ऑफ रीसिक्योरिटाइजेशन। थर्ड, लोन्स विथ बुलेट रीपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। loans with bullet repayment of both principal and interest। bullet मतलब क्या होता है? हाँ, एट ए टाइम, मतलब एक साथ प्रिंसिपल भी जाएगा, एक साथ इंटरेस्ट जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पीरियोडिकली नहीं जा रहा है। आज आप किसी को लोन दिए हो और वो आपको पूरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक साथ ही देगा, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप सिक्योरिटाइज करा सकते हो। बट आपने किसी को लोन दिया जिसका इंटरेस्ट आप पीरियोडिकली ले लेते हो, प्रिंसिपल आप बाद में लोगे, उसको सिक्योरिटाइज नहीं करा सकते। लोन्स विथ बुलेट रीपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन। इसमें एक बात आती है, जैसे एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल सेट होता है बिल्स रिसीवेबल। जैसे आप बैंक हो, आपने एक बिल डिस्काउंट किया, आपके हाथ में है वो बिल, राइट? तो आपको उसका रीपेमेंट मिलेगा आफ्टर से 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स जब आपको मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? एक साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। आपने तो अभी अमाउंट दे दिया और 6 महीने बाद ही सीधा आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल इज द बेस्ट एग्जांपल दैट कम्स ओवर हियर। एंड समटाइम्स एग्री लोन्स आर ऑल्सो इन दिस मॉडल। किसानों को जो लोन दी जाती है उनसे पीरियोडिकली इंटरेस्ट रिकवर नहीं किया जाता, उनसे एक साथ ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल एंड एग्री लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स। अब ऑब्वियसली इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है कि हर तरह का बिल रिसीवेबल नहीं, हर तरह का एग्री लोन नहीं, सबका एक पैटर्न देखा जाएगा कि वो ही बिल रिसीवेबल जिसमें उस पार्टी का पहले भी आप बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किए हो और उसका पेमेंट टाइमली आ गया है। क्या समझे? जैसे आप बैंक हो, आपने मेरा बिल डिस्काउंट किया, तो आप मेरा बिल को तभी सिक्योरिटाइज करा सकते हो जब आप प्रूव करोगे कि मेरे पहले भी ऐसे बिल आपने डिस्काउंट किए थे और मैं टाइमली आपको पेमेंट कर दिया था। प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपके पास कुछ है, आप लेके फट से सिक्योरिटाइजेशन में डाल दिए। पैटर्न आपका उसका कंफर्म्ड होना चाहिए, करेक्ट? नेक्स्ट, नंबर 4, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स। सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स। Now, what is securitization exposure? जैसे मैंने आपको बोला था ना, प्रोमोटर्स होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट वाला, ओरिजिनेटर को कुछ पोर्शन अपने पास रखना पड़ेगा टू गिव सेफ्टी टू एसपीवी कि भाई तेरे को 100% बेचने का टेंशन नहीं है, 20% तो मेरे पास है। तो जो 20% मेरे पास रह गया उसका एक मिनिमम होल्डिंग रहता है कि मुझे 1 साल तक अपने पास रखना होगा, उसके बाद तो मैं उसको सल्टा सकता हूं, तो मैं उसको रीसिक्योरिटाइज कर सकता हूं। समझ गए? तो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स विच इज बेसिकली पॉपुलर इन केस ऑफ, यू राइट, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज that are
held by the originator. Mortgage backed securities that are held by the originator. ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप सिक्योरिटाइज करा सकते हो। अभी हमारे एक फ्रेंड ने कराया, उनका क्या है, रायपुर में रियल एस्टेट का बिजनेस है। मेरे एक फ्रेंड ने सिक्योरिटाइजेशन कराया अभी हाल फिलहाल में। रायपुर में उनका एक शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल पूरा रेंट पे दिया हुआ है। जैसे आपका ये फोरम मॉल है, यहाँ पर एक्सेस मॉल है, बहुत सारे मॉल्स है, ये सब ऐसे ही मॉडल पे चलते हैं। ओके, तो ये जो मॉल के डेवलपर्स हैं वो शॉप को बेचते भी हैं कुछ कुछ मॉल में, बट मोस्टली अब जो मॉडल चल रहा है वो है रेंट पे देने का मॉडल, तभी अच्छी कमाई आती है उस पे। ओके, तो उन्होंने अपना पूरा मॉल रायपुर में रेंट पे दिया हुआ है और उससे उनका महीने का मान लीजिए एक्स अमाउंट 5 लाख रुपया रेंटल रिकवरी होता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक पैटर्न प्रूव किया कि 5 लाख रुपया देखिए हमारा इस महीने भी आया, 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 ऐसा करके 1 साल का पैटर्न दिखाया। LIC हाउसिंग फाइनेंस को पकड़ा, जिनका अभी SPV बनने का एक नया प्रोडक्ट शुरू हुआ है कि वो लोग ओरिजिनेटर से रिसीवेबल्स कलेक्ट करके सिक्योरिटी बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। ठीक, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को पकड़ा और उस रेंट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में सिक्योरिटाइजेशन करा लिया और लम सम में कुछ 2-3 करोड़ रुपया उठाया। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का रिकवरी कितना हुआ, 5 लाख इंटू 12 60 लाख। रेंटल अग्रीमेंट है 6 साल का, 6 साल का अग्रीमेंट प्रूव कर दिया, तो 60 लाख इंटू 6 कितना हुआ, 3 करोड़ 60 लाख का रिसीवेबल है, मतलब 2 करोड़ रुपए हमको दे दो। मार्जिन रह गया 2 करोड़ रुपए, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने दे दिया। उस 2 करोड़ से भाई साहब ने कलकत्ता में एक बिल्डिंग खरीद लिया और अब उसको भाड़े पे लगा देगा। फाइनेंस मैनेजमेंट दोस्तों इसी को बोलते हैं। फाइनेंस खाली नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट, कैसे पैसे जुगाड़ होते हैं। देखो, रायपुर का रुपया इंडिया में आ गया, सॉरी कलकत्ता में आ गया, और अपना वही रिकरिंग इनकम वापस चालू कर लिया। उसी रुपया से एक प्रॉपर्टी ओन कर लिया और उसका भी भाड़ा चालू कर दिया। करेक्ट, वहां पे भाड़ा जो आना है वो नहीं आया, 3 साल तक 4 साल तक नहीं आएगा। वो रुपया भाड़ा का जो उठेगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। वो लोग अपने इन्वेस्टर को सर्विस करेंगे। करेक्ट, 2-3 साल का उसने रिकवरी अपने लिए वहां बंद किया, उसके अगेंस्ट में यहां पे एक अच्छी प्रॉपर्टी तैयार की और उस प्रॉपर्टी को फिर भाड़े पे लगा दिया। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप में तो आ गया ना, सस्ता में मिल तो गया। तो ये एक नया पैटर्न आ गया जो RBI गाइडलाइंस में नहीं दिया हुआ है। RBI गाइडलाइंस में ये 3 नाम दिया हुआ है क्योंकि RBI फोकस कर रहा है बैंक को ध्यान में रख के। RBI जो गाइडलाइंस बना रहा है वो आम जनता के लिए नहीं बना रहा है, वो बोल रहा है एक बैंक कैसे कैसे सिक्योरिटाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। बट अभी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऑप्शंस दे रही है आम जनता को, वो ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे रही है। लेट्स गेट योर रेंटल्स फाइनेंस्ड through securitization. Understood? Number 4. There is minimum holding period criteria. What is it? Minimum holding period, ऐसी हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है? MHP बोल रहे शॉर्ट में। What is it? For whom? Minimum holding period is for whom? Originator. Correct. ओरिजिनेटर कितना समय के बाद अपने रिसीवेबल को सिक्योरिटाइज करा सकता है। करेक्ट, एक मिनिमम होल्डिंग होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उसका रीपेमेंट आता है कि नहीं आता है। करेक्ट, दैट इट इज, यू राइट, इसका इट इज मिनिमम होल्डिंग, यू राइट, मिनिमम होल्डिंग
of receivables by the originator to understand the repayment pattern. गाइडलाइन के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोन विथ मैच्योरिटी अप टू 2 years, अगर उसका रीपेमेंट ईएमआई में है, रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली है, तो मिनिमम होल्डिंग इज एमएचपी इज 3 EMIs. रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी अगर उसका मंथली है तो एमएचपी इज 3 EMIs, और वही लोन विथ मैच्योरिटी more than 2 years, more than 5 years लिख लो, more than 5 years, जिसका रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी फिर से मंथली है, तो उसका एमएचपी है जैसे 12 EMIs. ये एग्जाम्पल दिया हूं, और भी आपको पढ़ना है आप गूगल से डाउनलोड करें. आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस आपका इंस्टीट्यूट मेट में नहीं है, मैं तो आइडिया दे रहा हूं. ये रूल्स बने हुए. आपने कभी ये नोटिस किया है, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो और पहला ईएमआई दूसरा ईएमआई में आप डिफॉल्ट करो, बैंक से कम 10 फोन आएंगे आपके पास, और हर आदमी का फोन आएगा जो आपका पेपर लेके गया था वहां से लेके जो मैनेजर तक है. सर आपका बीमाई डिफॉल्ट कैसे हो गया सर? क्योंकि लायबिलिटी बैंक उनके ऊपर थोप देता है, तू कैसे कस्टमर को लोन दिया रे, पहला ईएमआई डिफॉल्ट हुआ. क्योंकि उसके कारण वो सिक्योरिटाइजेशन होगा नहीं, 12 महीना तक उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है. आप देखिए बैंक कई बार ये कंडीशन लगाता है, लोन लीजिए लेकिन 12 महीना का पहले रीपेमेंट किया तो हम चार्ज ले लेंगे. प्रीपेमेंट चार्ज, फोरक्लोजर चार्जेस बोलते हैं उसको. क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको जो सिक्योरिटाइजेशन से कमाई होने वाला था वो कमाई आप होने नहीं दी. एक्स्ट्रा कमाई होने वाली थी सिक्योरिटाइजेशन से, वो कमाई आप होने नहीं दिए, तो बैलेंसिंग कर रहे हैं आपसे फोरक्लोजर चार्ज रिकवर करके. मेरा ही पैसा मैंने आपसे लिया, मेरा काम हो गया, मैं पहले आपको लौटा देना चाहता हूं. आप बोलते हो हम नहीं लेंगे, देने आ रहे हो तो प्रीमियम दो, फोरक्लोजर चार्जेस दो. क्यों दूं? क्योंकि बैंक को लॉस हो रहा है उधर. आप जल्दी रिपेमेंट कर दो, उसका तो एक प्लान था सिक्योरिटाइजेशन का, वो प्लान डिस्टर्ब हो गया. करेक्ट. फिफ्थ, there is something called as minimum retention requirement. इसको बुला रहे MRR. What is this? ये हेडिंग से समझिए. मार्जिन, या यू राइट मिनिमम स्टेक ऑफ originator to ensure proper due diligence. To ensure proper due diligence. Minimum stake of originator to ensure proper due diligence. जैसे इसका भी एग्जांपल दे रहे हैं कि लोन अगर
आप जिसका मैच्योरिटी, लोन मैच्योरिटी 24 महीना से कम है, 24 महीना से कम है, तो बोलता 5% होल्डिंग होने से होगा। बट लोन मैच्योरिटी या 24 महीना तक लगना है, लेस देन इक्वल टू लोन मैच्योरिटी 24 महीना से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है, तो 10% रखना होगा। पूरा फ्रेमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए आपको ये सब पूरा प्रोसेस लॉजिकल लगने लगा है। सिक्स्थ, टोटल रिटेन्ड एक्सपोजर, इसका क्या मतलब हुआ? ओरिजिनेटर के लिए ही है। हाँ, मैंने बोला था टोटल सिक्योरिटीज का कितना परसेंट वो अपने पास रख सकता है। अरे वो सिक्योरिटाइज करा के सारा सिक्योरिटी खुद ही रख लिया तो क्या मतलब? तो उसके लिए मैक्सिमम भी रखा गया है कि आप अपने पास इससे ज्यादा मत रखिएगा, तो इन्वेस्टर के पास पहुंचने दीजिए। मतलब एसपीवी से वो कितना अपने नाम पे उठा सकता है, करेक्ट? तो इसका है मैक्सिमम टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओरिजिनेटर in the securities issued by the SPV, in the securities issued by the SPV through underwriting समझते होंगे आप, और अदरवाइज, इसे अदरवाइज इसलिए बोल रहे हैं कभी कभी क्रेडिट एनहांसमेंट करने के लिए करना पड़ता है। समझिए क्रेडिट एनहांसमेंट, समझिए कि इन्वेस्टर को और सिक्योरिटी देना है, इन्वेस्टर को फील कराना है कि ओरिजिनेटर ने अपना कैश कोलेटरल रखा हुआ है, थर्ड पार्टी गारंटी दिया हुआ है, तो खुद भी कुछ सब्सक्राइब कर लेते हैं कि उनको ये फील आए कि भैया हमारा डूबेगा तो उनका भी डूबेगा ना। और अदरवाइज इज लिमिटेड टू 20% of the total securitized instruments issued. %20 of the total securitized instruments issued. मैक्स बात आपका सही है। देखिए मैक्सिमम कैप क्यों है? मैक्सिमम कैप इसलिए भी रखा गया है कि आप इस प्रोसेस को क्यों बनाएं। आप इस प्रोसेस को बनाएं क्यों है? सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस को क्यों बनाएं? कि आप अपना रिसीवेबल्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दे रहे हो कि आप भी कमाओ, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बढ़ा रहे हो जिसमें इन्वेस्टर के पास अपने पैसे लगाने का एक और ऑप्शन है। और आप बोलते हो हम ही अपने चीज को खुद ही उगाएंगे और खुद ही खाएंगे, तो आपने इकोसिस्टम के लिए क्या किया? करेक्ट। तो आप अपने पास रखो 10-20%, किस लिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन्वेस्टर को सेफ्टी देने के लिए। आपको इतना हम लोग लीगल फ्रेमवर्क क्यों दे रहे हैं? लॉ आपको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? लॉ आपको ये फैसिलिटी कैसे दे रहा है? बोल रहा है कि आप इन्वेस्टर का वेलफेयर सोचिए ना, आप इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दीजिए। अगर इन्वेस्टर ही नहीं है तो आप अपने से ही अपने आप में करा के अपना बुक्स को क्या कर लोगे? बिगाड़ोगे बुक्स को आप कहीं ना कहीं। फिर तो रिसीवेबल्स, अभी मैं एक चीज में आया नहीं हूं इसका अकाउंटिंग पार्ट में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपने रिसीवेबल अपना बुक्स में बेच दिया है, करेक्ट? एंड अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो मेरा होम लोन दिया हुआ है आप सबको, आप लोगों का रिसीवेबल्स मेरे बुक्स में है और मैंने बेच दिया, पैसे उठा लिए, आप लोग डिफॉल्ट किए तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं लायबिलिटी घूम के मेरे ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी कहां लिखा आपने बुक्स में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लॉ आपको बहुत सारा फैसिलिटी दे रहा है, और अगर आप रिसीवेबल सोचो अपने आप को ही बेच रहे हो क्या? सारा का सारा रिसीवेबल अपने आप को ही बेच दोगे? तो बुक्स क्या करना चाह रहे हो आप? बुक्स को कहीं तो रखो, इन्वेस्टर दूसरे जो आपके आपके शेयर होल्डर जो है वो क्या समझेंगे आपके बुक्स से? ये अपना रिसीवेबल को अपने आप को बेच देता है। तो कुछ कारण से आरबीआई गाइडलाइंस इसके ऊपर बने हुए हैं। इसमें एक पॉइंट और आ रहा है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट। अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट। अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट इज, जैसे आप सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में एज एन ओरिजिनेटर और एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल आप कुछ प्रॉफिट कमाते हो, इधर एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और एज एन ओरिजिनेटर। आरबीआई जब आपको देख रहा है तो वो समझ रहा है कि आप कभी किसी के स्पेशल पर्पस व्हीकल बन रहे हैं या फिर आप कभी किसी के ओरिजिनेटर बन रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में। एंड समटाइम्स यू मे बिकम एन इन्वेस्टर ऑल्सो। एज अ बैंक यू कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपके केस में प्रॉफिट तो आएगा। आरबीआई गाइडलाइन बोल रहा है वो प्रॉफिट को एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, अमोर्टाइज करोगे। देखिए, प्रॉफिट और प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ securitization of loans should be amortized over the life of the securities, over the life of the securities। सबके लिए जैसे स्पेशल क्राइटेरिया ये सारे आरबीआई के, तो ये बैंक के ऊपर इंपोज ज्यादा करेगा। एक बैंक एज एन इन्वेस्टर अगर इस पे कमाया तो वो सारा प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा। एज एन ओरिजिनेटर इस पे कमाया तो सारा प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा। एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल कुछ कमाया तो सारा प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा। ओवर द लाइफ अमोर्टाइज करेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट अभी बुक कर लिया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए धोखा हो जाएगा। उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए धोखा हो जाएगा कि कमाई आ गई, बट एक्चुअली कंटिजेंट कमाई है। ये तो धीरे 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 रियलाइज होने का चीज है। ठीक है, एक बार के लिए यहां पे स्टॉप करके ब्रेक लेते हैं, फिर वी विल कंटिन्यू।